Hello everyone, my name is Sharad. I am CEO and co-founder of Catapult Classes, pass out of IFT Delhi 6 times 99 plus percentiler. These are my percentiles of previous attempts of CAT. You ask, we answer में ये question Sai Bhargav Reddy ने पूछा है. Let's see the question. So before I enter into the questions, MBA test series launch हो गई है. मैं बार बार बोल रहा हूँ, सबको बोल रहा हूँ, and please try to understand that writing mocks, analyzing them, watching video solutions is really important. There are 20 CAT mocks with video solutions. Price is just $7.99. There are non-CAT 20 mocks. There are sectionals, previous year papers, everything is there. 2 full length mocks हो चुके हैं, थर्ड की विंडो चल रही है. So please don't waste more of your time. Don't delay in enrolling. Enroll करो, खुद भी enroll करो और अपने सारे दोस्तों को भी enroll कराओ. Because the more number of people writing these tests, the better chance of you getting good competition and better clarity of where do you stand and everything. Paper and questions are as per CAT pattern, उसी same difficulty level को mark करते हुए questions हैं, बहुत ही अच्छे questions हैं, they are good solutions as well. Solutions के साथ concept भी बताया हुआ है, तो please फटाफट enroll कर लो. एनरोलमेंट का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, मैंने बहुत सारे वीडियोस में बताया हुआ है. लास्ट में एक वीडियो लगा दूंगा एंड में, उसको देख सकते हो. एंड फॉर पीपल हु हैव ऑलरेडी एनरोल्ड, प्लीज़ मेक श्योर टू राइट द टेस्ट. डोंट डिले इट. डिले करने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो डिले मत करो, फटाफट लगाते रहो. DILR में जिसको दिक्कत हो रही है, एंड प्लीज़ डोंट गो बाय द प्राइस. डोंट गो कि अभी इतने पैसे खर्च हो रहे हैं. पहली बात तो बहुत कम अमाउंट है. देर आर 500 सेट्स विद वीडियो सोल्यूशंस. You have watched all those solutions that I create, public videos जो हमने डाले हैं, you ask we answer में, या फिर ऐसे ही बहुत सारे questions के videos पड़े हुए हैं. So you can understand the approach that I follow and the kind of solutions that I provide. तो बहुत important है कि आप एक exhaustive sets of DILR लगा लो और with video solutions लगाओ, क्योंकि solutions देखना बहुत ज़रूरी है. अगर मुझे पता है कि दिस इज़ गोइंग टू इंक्रीज योर परसेंटाइल बियॉन्ड योर इमेजिनेशन एंड ऑल, जिसकी जो भी एक्सपेक्टेशन है उसे बहुत अच्छी परसेंटाइल आने वाली है. एंड अगर अभी कोई भी हेजिटेशन है कि मैं करूं कि ना करूं, सो यू कैन जस्ट वॉच द वीडियोज़ एंड ऑल दोज थिंग्स. इस वीडियो को भी देख सकते हो. बट मेरा ऐसा सजेशन है कि द प्राइस इज़ नॉट दैट ग्रेट, तो इनरोल कर लेना चाहिए अगर कोई तैयारी कर रहा है अच्छे से. सो द टाइम इज़ इम्पॉर्टेंट. एक साल डिले करने का कोई फ़ायदा नहीं है. सिमिलरली RC200 इज़ अ न्यू product that we are going to launch. 200 RC passages with video solutions, all genres, 5 concept sessions. These sessions are going to be really important, and as well as Sunday discussion session. This is again at a very less price, $9.99 only. Now coming on to this question है, Rajiv, an MBA student, calculated and plotted the cumulative expenses and cumulative revenues for the 4 quarters of a particular year. For 4 different companies, the cumulative expenses and revenues for any quarter are calculated as the sum of expenses or sum of revenues for all the quarters in that year until that quarter, including that quarter. ये divide नहीं है, ये और है. Sum of expenses कर लो या फिर sum of revenues कर लो. तो अगर cumulative expense चाहिए, then you calculate sum of expenses. अगर revenue चाहिए, then you calculate sum of revenues. Also, it is known that each of the 4 companies had positive revenues and positive expenses in each quarter of that year. तो हर ईयर में पॉजिटिव रेवेन्यू है और पॉजिटिव एक्सपेंस है हर क्वार्टर में. इससे क्या पता चल रहा है, अगर इस ग्राफ को देखो, किसी एक पॉइंट को उठा लेते हैं, जैसे ये पॉइंट है, तो इसका मतलब है कि क्यूमुलेटिव रेवेन्यू जो है वो 5 है, क्यूमुलेटिव एक्सपेंस जो है वो 2 है. अभी किसी भी क्वार्टर में हो, मान लो ये सेकेंड क्वार्टर में है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, तो इस कंपनी का जो थर्ड क्वार्टर होगा, क्योंकि हर क्वार्टर में पॉजिटिव रेवेन्यू है और पॉजिटिव एक्सपेंस है, तो जो भी हम वैल्यू लेंगे वो रेवेन्यू में F से ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि इस साइड होनी चाहिए, और एक्सपेंस में भी F से ज़्यादा होना चाहिए, तो इस साइड होना चाहिए. क्यों ज़्यादा होना चाहिए? बिकॉज अब इस क्वार्टर तक, सेकेंड क्वार्टर तक रेवेन्यू 5 है, थर्ड क्वार्टर में पॉजिटिव रेवेन्यू होगा, तो चाहे वो 1 हो 2 हो वट एवर इट इज़, तो जो क्यूमुलेटिव रेवेन्यू होगा वो 5 प्लस हो जाएगा. इसका मतलब हम इस पर्टिकुलर लाइन के राइट साइड में ही रहेंगे, इस लाइन पे भी नहीं रह सकते हैं, राइट साइड पे रहेंगे. उसी तरीके से एक्सपेंस अगर 2 है सेकेंड क्वार्टर तक, तो थर्ड क्वार्टर में भी कुछ एक्सपेंस ऐड होगा बिकॉज पॉजिटिव एक्सपेंस है, तो जो क्यूमुलेटिव एक्सपेंस होगा वो इसके ऊपर होगा.
तो अगर हम देखें तो ऊपर मतलब ये वाला रीजन और राइट में मतलब ये वाला रीजन, तो जो इंटरसेक्शन मिल रहा है वो यहाँ पे मिल रहा है। तो f के बाद इधर के जितनी भी वैल्यूज़ हैं हम उसको ले सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम किसी भी वैल्यू को लेने के बाद अगर नेक्स्ट वैल्यू उस पर्टिकुलर कंपनी की ढूंढेंगे तो वो इस डायरेक्शन में होगी, मतलब इधर और इधर खींच दो तो ये जो भी सेल बनेगा उसमें होगी। ना हम इस डायरेक्शन में जा सकते हैं, ना हम इस डायरेक्शन में जा सकते हैं, ना हम इस डायरेक्शन में जा सकते हैं। तो हम हमेशा इस तरफ ही बढ़ेंगे, ऊपर की तरफ बढ़ेंगे। तो ये क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं कि आगे क्या करना है। 4 कंपनीज हैं, तो इसका मतलब फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर। हर कंपनी का हमको एक एक वेरिएबल पता है, उस वेरिएबल की वैल्यू हमको वहाँ पे रखनी है। अब अगर क्यूमुलेटिव एक्सपेंस को देखो, 0 एक्सपेंस किसी का नहीं है, 1 एक्सपेंस किसी का नहीं है। पहला जो 2 एक्सपेंस आ रहा है वो F का आ रहा है। इसका मतलब जो F है दैट हैज़ टू बी द स्टार्टिंग ऑफ एनी कंपनी, फर्स्ट क्वार्टर ऑफ किसी भी कंपनी का होना चाहिए। क्योंकि अगर F फर्स्ट क्वार्टर नहीं है तो हमको, अगर हम F को स्टार्ट नहीं करेंगे तो हम किसी भी एक्सपेंस में रहेंगे। मान लो हम J पे हैं तो क्यूमुलेटिव एक्सपेंस बता रहा है 5। अब 5 से 2 पे नहीं आ सकते ना, क्योंकि पॉजिटिव एक्सपेंस है, तो ऊपर की तरफ ही जाओगे। तो दैट गिव्स अस कि जो F है वो किसी कंपनी का फर्स्ट क्वार्टर का पॉइंट होगा। F को हमने कवर कर लिया। अब थर्ड क्यूमुलेटिव एक्सपेंस 3 पे आओ, तो 2 से हम 3 पे जा सकते हैं। लेकिन अगर हम A की बात करें तो A F के इधर है, हम इधर नहीं जा सकते, हम बैक में नहीं जा सकते, हम आगे की तरफ ही जा सकते हैं। हम इधर की तरफ जा सकते हैं, हम बैक की तरफ नहीं जा सकते हैं। और तो इस वजह से A हैज़ टू बी द स्टार्टिंग पॉइंट, क्योंकि A पे हम कहाँ से आएंगे, कहीं से नहीं आ सकते हैं। उसी तरीके से अगर हम रेवेन्यूज़ के कॉलम को देखें तो सबसे पहला रेवेन्यू D का मिल रहा है, तो D हैज़ टू बी द स्टार्टिंग पॉइंट। अब C की बात कर लेते हैं। हमने 3 स्टार्टिंग पॉइंट निकाल लिए हैं, अब C की बात कर लेते हैं। C पे हम कहाँ से आ सकते हैं? हम C पे आने के लिए हमको इधर कोई वैल्यू चाहिए, बट इधर कोई भी वैल्यू नहीं है। इसका मतलब हम C पे कहीं से नहीं आ सकते हैं, तो C हैज़ टू बी माई स्टार्टिंग पॉइंट। अब हमको 3 स्टार्टिंग पॉइंट मिल गए हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं, हर वैल्यू को देखते हैं कि वो किस में जा सकती है। तो D इज़ कवर्ड, D इज़ डन। इस पर्टिकुलर कॉलम में अगर हम आएँ तो A को कवर कर लिया है। अब G पे कहाँ पे किससे जा सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ D से मूव कर सकते हैं। G पे जाने के लिए इस पर्टिकुलर रेंज में हमें कोई वैल्यू चाहिए, सिर्फ D है, तो D के बाद सेकंड क्वार्टर वाले जो वैल्यू होगी वो G हो जाएगी। अब हम आते हैं J पे। J पे हम कहाँ से जा सकते हैं? हम D से भी जा सकते थे, A से भी जा सकते थे, लेकिन D अब G को ले चुका है, तो अब G से नीचे की तरफ नहीं आएगा। तो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है A, तो A के बाद J आएगा। तो हमने अभी तक ये सब कवर कर लिया है। अब हम आते हैं K पे। K के लिए हम यहाँ पे जा सकते हैं, तो G पे जा सकते थे या फिर A से जा सकते थे, लेकिन A ने J को ले लिया है, J से K पे नहीं जा सकते हैं। तो G के बाद क्या आ जाएगा? K आ जाएगा। K कवर हो गया। अब हम आते हैं C पे। C तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, तो कोई मतलब ही नहीं। F हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, तो कोई मतलब नहीं। अब हम आ जाते हैं O पे। तो O पे हम कहाँ से आ सकते हैं? हम O पे F से जा सकते हैं, C से जा सकते हैं, और हमारा K है नेक्स्ट और J है, तो K, J, C और F, इन चारों से जा सकते हैं, क्योंकि सबके लिए वो ऊपर की तरफ है। लेकिन अगर F से जाएंगे हम O पे, तो O के बाद हम क्या वैल्यू ले सकते हैं? O के बाद हम सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू ले सकते हैं, दैट इज M। अगर हम F से O पे चले गए तो नेक्स्ट वैल्यू M ले लेंगे, बट फोर्थ क्वार्टर के लिए कोई वैल्यू ही नहीं है। इसका मतलब O F में नहीं जा सकता है। अब अगर हमने J से चले गए, यहाँ से चले गए, तो O पे जाने के बाद हमारे पास M हो जाएगा, तो ये एक वैलिड है, A J O M हम कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम K से चले गए तो D G K O, और यहाँ पे हमने एंड कर दिया, विच अगेन इज़ वैलिड। तो इसका मतलब हमने एक और बना लिया, 1 2 3 4, एक सीक्वेंस हम और बना लेते हैं, F A D C J G K O। O की हम बात कर रहे थे, तो अगर हमने O को K के बाद दे दिया तो यहाँ पे हम रख सकते हैं। ये भी एक पॉसिबिलिटी थी, तो वो हमने कवर कर लिया। तो K से कवर कर लिया, ये क्या है?
जे से भी कवर कर लिया। सी से अगेन सेम लॉजिक से, अगर हम सी से जाएंगे तो ओ के बाद सिर्फ एम आ सकता है, तो सी के थर्ड क्वार्टर के लिए कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, तो इससे भी नहीं जा सकते, इससे भी नहीं जा सकते। तो हमारे पास अब दो पॉसिबिलिटी आ गई हैं ओ के आने के बाद। अब हम आगे देखते हैं, तो ओ तक हमारा कवर हो गया। अब हमारे पास आता है बी। बी हम कहाँ पे जा सकते हैं? बी पे जाने के लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, दैट इज़ एफ। तो एफ के बाद हम बी में चले जाएंगे और एफ के बाद हम बी में चले जाएंगे। अब आते हैं हम पी पे, तो बी के बाद पी पे तो नहीं जा सकते हैं, एम यहाँ पे पहले से फिल हो गया है, तो के के बाद हम पी पे जा सकते हैं, दैट इज़ वन पॉसिबिलिटी। अगर हम के के बाद पी पे चले गए, और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? दूसरी पॉसिबिलिटी है सी से हम जा नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर हम पी पे चले गए तो उसके आगे हमारे पास कुछ है नहीं, तो इस वाले प्रोसेस में हम सिर्फ पी पे रखेंगे। अगर इधर वाले में हम देखें तो बी से नहीं जा सकते हैं, जे से हम जा सकते हैं, जे से हम पी पे जाएंगे और पी से एम पे चले जाएंगे, तो जे से पी और पी से एम, ये एक पॉसिबिलिटी हमको दिख रही है। अगेन सी से नहीं जा सकते हैं, तो पी का भी हमने सॉर्ट आउट कर दिया। अब हम आ जाते हैं एन पे। एन पे कहाँ से कहाँ तक जा सकते हैं, किससे जा सकते हैं एन पे? तो सी से जा सकते हैं, ए तो ख़त्म ही हो चुका है, बी से जा सकते हैं, तो सी से जा सकते हैं और बी से जा सकते हैं। अगर सी से गए तो एन के बाद फिर हमारे पास क्या क्या वैल्यूज़ पॉसिबल बच रही हैं? एन के बाद हमारे पास ई बच रहा है और एच बच रहा है, तो ई ले लो और एच ले लो, तो सी एन ई एच एक हमारे पास पूरी की पूरी 4 क्वार्टर की सीरीज़ मिल जा रही है। अगर हमने नहीं लिया सी को, अगर हमने बी को दे दिया एन, तो बी के बाद एन हो जाएगा और एन के बाद ई हो सकता है या फिर एच हो सकता है या फिर आई हो सकता है, कुछ भी हो सकता है और सॉर्टेड है। लेकिन सी का क्या होगा? पहले सी को समझते हैं। अगर सी को एन नहीं देते हैं तो सी के पास क्या होगा? अगर एन नहीं देते हैं तो सी के पास ऑप्शन है, अब बच रही हैं सिर्फ इतनी वैल्यूज़, तो अगर वो एल के पास चला जाएगा तो सी एल आई अगेन 4 क्वार्टर नहीं कंप्लीट कर पाएगा। सी के बाद ई पे जाएगा अगर, तो सी ई एच अगेन 4 क्वार्टर नहीं कंप्लीट कर पाएगा। तो सी के पास अगर एन नहीं देते हैं तो कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं बच रही है, सो वी हैव टू गिव एन टू सी। तो एन के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, तो एन चला गया सी के पास। एम हमारा कवर्ड हो चुका है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो एम को देखना नहीं है। अब हमारे पास ई बच रहा है। अगेन एन के बाद हमको 2 वैल्यूज़ चाहिए थी, और वो 2 वैल्यूज़ कौन कौन सी हो सकती हैं? ई हो सकती है और एच हो सकती है, एल तो हो ही नहीं सकती, और आई ले लेंगे तो नेक्स्ट वैल्यू नहीं है, तो ये फिक्स्ड है। ई और एच इधर आ जाएगा, ई और एच इधर आ जाएगा, तो जो बच रहा है वो बी के पास चला जाएगा, यानी कि एल और आई बी के पास चला जाएगा। तो अब हमारे पास ये 2 पॉसिबिलिटी हो गई, ये दोनों हो गए। आई होप कि अभी तक क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन पे आ जाओ। पहला क्वेश्चन है, इफ द डेटा पॉइंट ABCD रिप्रेजेंट्स विद दीज नंबर्स, टू विच द डेटा पॉइंट n करस्पॉन्ड्स। तो डेटा पॉइंट n किस में है? CNEH पे है। अब इसके नंबर्स जो आते हैं वो जोड़ के तुम लिख लेना, जैसे यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, ABCDEFGH, यहाँ पे 8 आ जाएगा, IJKLMN 12 13 14, यहाँ पे 14 आ जाएगा, राइट? ये यू कैन चेक इट। तो CNEH होना चाहिए। अब उसकी जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू है वो निकाल लो। हाउ मेनी ऑफ द 4 कंपनीज मेड अ प्रॉफिट इन द 3rd क्वार्टर। तो ध्यान रखना कि जो ये वैल्यूज़ हैं ये क्यूमुलेटिव दी हुई हैं हमें, दीज आर नॉट द एब्सोल्यूट वैल्यूज़, उस क्वार्टर की वैल्यू नहीं है। तो 3rd क्वार्टर की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 2nd क्वार्टर तक जो सम है उसको हम 3rd क्वार्टर के क्यूमुलेटिव सम से माइनस कर देंगे, यानी कि क्यूमुलेटिव ऑफ 3 माइनस क्यूमुलेटिव ऑफ 2, दैट गिव्स अस 3rd क्वार्टर। ठीक, तो अब हम एक एक को देखते हैं। एल में से पहले क्या है? बी है, तो जो रेवेन्यू है वो 2 पॉइंट बढ़ा, 8 माइनस 6, और जो एक्सपेंस है वो भी 2 पॉइंट्स बढ़ा, तो देर इज़ नो प्रॉफिट नो लॉस। तो एल पे नो प्रॉफिट नो लॉस। ओ कहाँ पे है? ओ इज समवेयर हियर, और ओ के पहले है जे, तो जे पे है रेवेन्यू 3, ओ पे है रेवेन्यू 5.5, तो 5.5 माइनस 3 दैट गिव्स अस 2.5, ये रेवेन्यू हो गया। एक्सपेंस 5 है
और ओ पे 8 है, तो एक्सपेंस हो गया 3, 3 माइनस 2, 2.5 माइनस 3 दैट इज 0.5 का लॉस है, तो ओ पे लॉस हो रहा है। के पे क्या हो रहा है, व्हाट अबाउट के, के इज कहाँ पे है, के यहाँ पे है, के पहले क्या है, जी है, तो ये तुम देख रहे हो कि 2 से 3 बढ़ रहा है और 6 से 7 बढ़ रहा है, तो यहाँ पे भी नो प्रॉफिट नो लॉस, ज़ीरो प्रॉफिट ज़ीरो लॉस। ई कहाँ पे है, ई इज हियर, ई के पहले क्या है, ई के पहले एन है, सो 7 से 7.5 है और 5 से 6, अगेन इस पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो अगर हम पहले वाले को देखें तो 0 कंपनीज मेड प्रॉफिट इन द थर्ड क्वार्टर, 2 ने लॉस किया है और 2 में नो प्रॉफिट नो लॉस है। इस वाले सिनेरियो को भी देख लेते हैं, बट क्योंकि यहाँ पे नन ऑफ दीज या कैन नॉट बी डिटरमाइंड नहीं है, तो हमको थर्ड वाले को, सेकंड सॉल्यूशन को देखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हमारे पास एग्जैक्ट आंसर है। तो इसका मतलब जो यहाँ पे आएगा वही यहाँ पे आएगा। यू कैन सी एल और बी है, तो इसका मतलब एल पे 0 प्रॉफिट 0 लॉस, पी के साथ जे है, तो इसको हमको फिर से चेक करना पड़ेगा। तो पी यहाँ पे है और जे यहाँ पे है, जे पे रेवेन्यू है 3, पी पे रेवेन्यू है 6, तो रेवेन्यू इंक्रीज हुआ 3 का, जे पे एक्सपेंस है 5 और पी पे एक्सपेंस है 8, तो ये भी 3 का, तो यहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस हो गया। के एंड जी, के एंड जी, के एंड जी हमने यहाँ पे भी निकाला है, तो इसका तो 0 प्रॉफिट 0 लॉस। ई एंड एन, ई एंड एन हमने यहाँ पे भी निकाला है, तो इसका लॉस हो रहा है, तो यहाँ पे लॉस हो गया। तो इसमें भी हमको दिख रहा है कि 0 कंपनीज मेड प्रॉफिट, तो आंसर इसका क्या हो गया, 0 हो गया। अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन है इफ द कंपनी टू विच डेटा पॉइंट एम करस्पॉन्ड्स डिड नॉट इनकर अ लॉस इन द थर्ड क्वार्टर। एम जिस कंपनी में है उसको लॉस नहीं हुआ थर्ड क्वार्टर में, तो यहाँ पे एम जिस कंपनी में है उसको लॉस हो रहा है, यहाँ पे जिस कंपनी में है उसको लॉस नहीं हो रहा है। सो वी आर लुकिंग एट दिस सॉल्यूशन सेट। What is the profit made in the fourth quarter by the company to which data point G corresponds? तो G किस में है, इसमें है, तो हमको ये बताना है कि फोर्थ क्वार्टर में O को कितना प्रॉफिट हुआ, मतलब इस कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ। तो O यहाँ पे है और O से पहले है K, रेवेन्यू है 3 और 5.5, तो रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है 2.5 से, और एक्सपेंस है 7 और 8, तो एक्सपेंस हो रहा है 1, तो प्रॉफिट हो गया 1.5 का, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। लास्ट है हाउ मेनी कंपनीज इनकर्ड अ लॉस इन द सेकेंड क्वार्टर, तो अब सेकेंड क्वार्टर के लिए इनका सबका निकालना पड़ेगा हमें, तो बी और एफ, तो हम क्या करेंगे, बी और एफ देखेंगे, तो ये एक बढ़ रहा है, ये एक बढ़ रहा है, तो इसको 0 प्रॉफिट 0 लॉस। जे एंड ए, जे एंड ए, रेवेन्यू बढ़ रहा है 1 पॉइंट से, एक्सपेंस बढ़ रहा है 2 पॉइंट से, तो यहाँ पे लॉस हो रहा है। जी एंड डी, जी एंड डी, रेवेन्यू बढ़ रहा है 1 पॉइंट से, एक्सपेंस बढ़ रहा है 2 पॉइंट से, तो यहाँ पे भी लॉस है। एन एंड सी, एन एंड सी यहाँ पे और यहाँ पे, रेवेन्यू बढ़ रहा है 3 से और एक्सपेंस बढ़ रहा है 2 से, तो यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। इधर भी देख लेते हैं दूसरे वाले सेट में। दूसरे वाले सेट में अगर हम देखेंगे तो एन और सी है तो यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा, डी और जी है तो यहाँ पे लॉस हो जाएगा, ए और जे है तो लॉस हो जाएगा, और ये बिकॉज फर्स्ट 2 कॉलम्स जो हैं दोनों में सेम है। सो देर इज़ वन कंपनी, हाउ मेनी कंपनीज इनकर्ड अ लॉस, सो देर आर 2 कंपनीज विच इनकर्ड लॉस, वन कंपनी इनकर्ड प्रॉफिट एंड वन कंपनी इनकर्ड नो प्रॉफिट नो लॉस। तो आई होप कि अभी ये सेट किस तरीके से होगा, इस ग्राफ को कैसे रीड करना है, ये सब कुछ सबको समझ में आ गया होगा। प्लीज़ लाइक द वीडियो, कमेंट ऑन द टारगेट वीडियो, और इस वीडियोस पे, बाकी वीडियोस पे सब पे कमेंट करो, शेयर अबाउट आवर प्रोडक्ट्स, शेयर अबाउट आवर चैनल एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। प्लीज़ मेक श्योर कि आपके सारे दोस्तों को हमारे चैनल के बारे में बताओ। इफ़ यू विल स्प्रेड इट, इफ मोर पीपल आर वॉचिंग इट, लाइकिंग इट, अप्रिशिएटिंग इट, गिव्स अस मोर मोटिवेशन टू क्रिएट सच वीडियोज़। हम ये तभी कर पाएंगे जब हमारे पास और सारे बच्चे, बहुत सारे बच्चे उसको देख रहे होंगे, अप्रिशिएट कर रहे होंगे, देन ओनली वी विल हैव मोटिवेशन टू कीप ऑन doing this thing. You can mail to me on this ID, you can call and WhatsApp me on this number, and you can also follow me on Instagram @sharad.ift. That's it guys, keep asking, keep sharing, keep learning, and enjoy your day.